ایک کہانی 11واں حصہ یعقوب حصہ اول پیدائش 27 تا 35 باب۔ اب ہم یعقوب پر نظر ڈالیں گے۔ جیسا کہ ابراہیم اسحاق کے ساتھ جڑا ہے، ایسا ہی یوسف کے ساتھ یعقوب کو سمجھنا اچھا ہے۔ اگر ابراہیم کو خدا نے اس کی زندگی کے وسط میں بلایا تھا تو اسحاق ایک پختہ پیدائشی مسیحی تھا، اور جبکہ یعقوب بھی ایک پیدائشی مسیحی تھا، وہ اسحاق سے مختلف تھا، کیونکہ اس نے پیدائشی مسیحی ہوتے ہوئے ایک دنیاوی پہلو دکھایا تھا۔ اپنی بلاہٹ سے پہلے یعقوب۔ اسحاق نے 40 سال کی عمر میں شادی کی، اور جب جڑواں بچے عیسو اور یعقوب اس سے پیدا ہوئے، اس وقت اس کی عمر 60 سال تھی۔ اسحاق نے خدا سے دعا کی کیونکہ اس کی بیوی ربکا حاملہ ہونے سے قاصر تھی۔ خدا نے اس کی دعا کا جواب دیا اور ربکا حاملہ ہوئی، لیکن اس کے بیٹوں نے رحم میں لڑائی کی۔ خدا اس لمحہ پر کچھ حیرت انگیز کہتا ہے۔ خداوند نے کہا، 2 قومیں تیرے پیٹ میں ہیں اور 2 قبیلے تیرے بطن سے نکلتے ہی الگ الگ ہو جائیں گے، اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ سے زوراور ہوگا اور بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ یعقوب کی پیدائش سے پہلے ہی خدا نے کہا تھا کہ پہلوٹا عیسو دوسرے پیدا ہونے والے یعقوب کی خدمت کرے گا، اور اس سے ایک بار پھر یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا کا انتخاب صرف اور صرف خدا کی مرضی پر منحصر ہے، نہ کہ ہمارے معیاروں پر۔ عیسو جو اپنا پیدائشی حق بیچتا ہے، اور یعقوب جو اسے خریدتا ہے۔ اسحاق نے عیسو کو زیادہ پیار کیا کیونکہ اسے عیسو کا جنگلی شکار مار کر لانا پسند تھا، اور ربکا یعقوب سے محبت کرتی تھی۔ اس وقت شکار کرنا بھی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ تھا، لہٰذا ایک بار جب عیسو شکار کے لیے باہر نکلتا تو وہ کچھ دن کے لیے گھر سے چلا جاتا، اور اسی طرح ماں ربکا یعقوب سے محبت کرتی تھی، جو گھر میں رہ کر اس کی مدد کرتا تھا۔ پھر ایک دن عیسو بہت تھکا ماندہ اور بھوکا شکار سے واپس آیا اور یعقوب سے پکا ہوا لال شوربہ مانگا۔ یعقوب ایک بھائی کی حیثیت سے محض اس دال کو اسے دے سکتا تھا، لیکن یعقوب نے اس موقع کو نہ گنوایا اور اپنے بڑے بھائی کے پیدائشی حق کا مطالبہ کیا۔ عیسو جو انتہائی تھکا ہوا اور بھوکا تھا، اس نے یعقوب کی روٹی اور دال کھانے کے لیے اپنے پیدائشی حق کو ناچیز خیال کے ساتھ یعقوب کو بیچا۔ عیسو نے پیدائشی حق کو معمولی سمجھا۔ اس وقت پیدائشی حق حقوق اور فرائض پر مشتمل تھا۔ حق اپنے والد کی دگنی میراث حاصل کرنے کا حق، اور فرض والدین کی دیکھ بھال کرنے کے بارے میں ہے۔ تاہم عیسو کی زندگی اس کی اپنی مرضی کے مطابق گزر رہی ہے۔ عیسو نے 40 سال کی عمر میں ہتھیوں کی بیٹیوں سے شادی کی، اور یہ اسحاق اور ربکا کی پریشانی تھی۔ عیسو کے پاس جو کچھ وہ چاہے کرنے کی طاقت تھی، لہٰذا اسے برائے نام پیدائشی حق کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یعقوب پیدائشی حق چاہتا تھا، چاہے وہ برائے نام ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حق اور فرض کو ایک طرف رکھتے ہوئے بڑے بیٹے کے نام میں خدا کی برکت بھی شامل ہے۔ یہ طریقہ درست نہیں تھا کیونکہ وہ ابھی تک خدا سے نہیں ملا تھا، لیکن یعقوب کو پھر بھی خدا کی طرف سے ملنے کی توقع تھی۔ یقیناً جب یعقوب کی طرح خدا کے لوگ خدا کی خواہش میں دلچسپی لینے کے بغیر خدا سے کسی چیز کی توقع کرتے ہیں تو یہ بری بات ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ بری بات خدا کی پرواہ نہ کرنا اور عیسو کی طرح خدا کا اعتراف نہ کرنا ہے۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ عیسو نے بے سود ایسا کیا۔ اسحاق کی برکت۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اسحاق اندھا ہوتا گیا اور سوچا کہ موت کا دن قریب آ گیا ہے، لہٰذا اس نے عیسو کو بلایا جس سے وہ پیار کرتا تھا۔ یہ اسے بتانا تھا کہ اگر وہ شکار مار کر اسحاق کے لیے مزیدار کھانا بنائے تو وہ اسے تب تک کھائے گا جب تک اس کا پیٹ نہ بھر جائے، پھر وہ خوش دلی سے عیسو کو برکت دے گا۔ یہاں ایک لمحہ کے لیے اسحاق کی عمر کا حساب لگانا ضروری ہے۔
کیونکہ اس وقت کے بعد اسحاق جس کا خیال تھا کہ وہ جلد ہی مر جائے گا مزید 50 سال تک زندہ رہا۔ پہلے ہمیں یعقوب اور یوسف کے درمیان عمر کے فرق کو جاننے کی ضرورت ہے۔ بعد میں جب یعقوب مصر میں یوسف سے ملنے گیا اور فرعون کے سامنے کھڑا ہوا تو اس کی عمر 130 سال بتائی جاتی ہے۔ اس وقت یوسف کی عمر 39 سال تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یوسف 30 سال کا تھا جب وہ فرعون کے سامنے کھڑا ہوا اور وہ وزیر اعظم بنا، اور جب یوسف اپنے باپ یعقوب سے ملا تو اس کی اچھی فصل کے 7 سالوں کے بعد کے 2 سال بعد ملا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعقوب کی عمر 91 سال تھی جب اس نے یوسف کو جنم دیا۔ تاہم جب یعقوب نے یوسف کو جنم دیا اس نے اپنے ماموں اور سسر لابن کا گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اور وہ عرصہ جب یعقوب لابن کے گھر رہا وہ 20 سال کا تھا۔ پھر 91 سے 20 سال منفی کریں تو یہ 71 سال کا ہوگا۔ جب یعقوب 71 سال کا ہوا تب اس نے اپنے باپ اسحاق اور اپنی ماں ربکہ کو چھوڑا، اور چونکہ 60 سال کی عمر میں اسحاق کے پاس عیسو اور یعقوب تھے، لہٰذا جب اسحاق نے اپنے بیٹے عیسو سے کہا مجھے لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، پس میں اچھی طرح سے کھاؤں گا اور دل کی خوشی سے تجھے برکت دوں گا، تو اس کی عمر 131 سال تھی۔ تاہم اسحاق 180 سال کی عمر میں مرا۔ زندگی ایک ایسی چیز ہے جسے ہم واقعتاً نہیں جانتے۔ پھر واپس آتے ہیں اسحاق کی بیوی اور یعقوب کی ماں ربکہ، جو یعقوب کو عیسو سے زیادہ پیار کرتی تھی، اپنے بڑے بیٹے عیسو پر اسحاق کی برکت کے بارے میں سنتی ہے اور یعقوب کے لیے اس کے باپ کی برکت حاصل کرنے کے لیے اس کے ساتھ منصوبہ بناتی ہے۔ پہلے تو یعقوب نے کہا میں اس کو دھوکہ دیتے ہوئے ظاہر ہو جاؤں گا اور اپنے اوپر ایک برکت کی بجائے لعنت لاؤں گا، لیکن پھر یعقوب جو پہلے ہی پیدائشی حق کے لالچ میں تھا جس کا ابھی کوئی فائدہ نہیں تھا، اپنے باپ کی برکت حاصل کرنے کے لیے اپنی ماں کے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ یعقوب جس نے اس لذیذ کھانے کو جو اس کے باپ اسحاق نے عیسو سے مانگا تھا پکایا اور اسحاق کو دیکھنے کے لیے گیا، تو اسحاق اور خدا کے سامنے مسلسل جھوٹ بولا۔ اول تو جب اسحاق نے پوچھا میرے بیٹے تو کون ہے، یعقوب نے جواب دیا میں تیرا پہلوٹا عیسو ہوں۔ نہ تو یعقوب پہلوٹا ہے نہ عیسو۔ دوسرا، یعقوب اسحاق سے کہتا ہے میں نے ایسا ہی کیا جیسا تو نے مجھے بتایا۔ اسحاق نے یعقوب کو کبھی حکم نہیں دیا اور نہ ہی یعقوب نے ایسا کیا جس کا حکم اسحاق نے دیا تھا۔ تیسرا، یعقوب نے اسحاق سے کہا کہ وہ اس کے شکار مار کر لائے میں سے کھائے، یہ بھی بکریوں کے ریوڑ میں سے ہے، شکار کا گوشت نہیں ہے۔ لیکن جو ہی اسے عجیب و غریب محسوس ہوا، اسحاق پوچھتا ہے کہ یہ تمہیں اتنی جلدی کیسے مل گیا؟ مضطرب یعقوب نے جواب دیا خداوند تیرے خدا نے مجھے کامیابی بخشی۔ اس نے خدا کا نام استعمال کرتے ہوئے اپنے باپ سے جھوٹ بولا، چونکہ وہ خدا کی بلاہٹ کے ذریعے خدا کو نہیں جانتا، اسی لیے یعقوب اپنے الفاظ یا زندگی میں خدا کو نہیں پہچانتا اور نہ ہی اسے مانتا ہے۔ اس کا مقصد صرف ایک ہے، وہ کسی بھی طرح اور طریقوں سے برکت، دنیاوی نعمت چاہتا ہے۔ یہ صرف اس کو برکت دینے کے لیے کافی ہو سکتا تھا، لیکن اسحاق کو ابھی بھی کچھ عجیب سا محسوس ہوا اور کہا قریب آ تاکہ میں تجھے چھو سکوں، یہ جاننے کے لیے کہ تو واقعی میرا بیٹا عیسو ہے یا نہیں۔ اسحاق یعقوب کو، جس نے پہلے ہی اپنے ہاتھ اور گردن کو بکریوں کے بالوں سے ڈھانپ رکھا ہے، چھوتا ہے اور کہتا ہے آواز یعقوب کی آواز ہے لیکن ہاتھ عیسو کے ہاتھ ہیں۔ یہاں تک کہ اس نے برائے راست پوچھا کیا تو واقعی میرا بیٹا عیسو ہے؟ اسحاق تو اسحاق، لیکن یعقوب بھی مضبوط دل ہے۔ اگر یعقوب خدا سے تھوڑا بہت واقف ہوتا اور خدا سے ڈرتا تو جب صورتحال اس مقام پر پہنچی تو وہ ایمانداری سے اعتراف کرتا، لیکن یعقوب انجام کو جاتا ہے۔ یعقوب جواب دیتا ہے میں ہوں۔ ایک بار جھوٹ شروع ہو جائے تو اسے تبدیل کرنا واقعی مشکل ہے۔ آخر میں اسحاق نے یعقوب کو برکت دی، نہ کہ عیسو کو۔
याकूब जीत गया? नहीं, याकूब ने सोचा होगा कि वो आखिरकार जीत गया, क्योंकि आखिरकार उसे वो मिल गया जो वो चाहता था। लेकिन हम पहले ही जान चुके हैं, अगर हम नहीं जानते तो हमें ज़रूर जान लेना चाहिए। अव्वल तो इसहाक ने याकूब को बरकत नहीं दी, अगरचा बरकत याकूब के जिस्म पर रखी गई थी, इसहाक के दिल में पेश बेटा वाज़ेह तौर पर ईसो था। दूसरा, यहाँ तक कि अगर याकूब ने इसहाक की बरकत हासिल की और बरकत याकूब की ही है, लेकिन जो शख्स बरकत देता है वो असल में इसहाक नहीं है। लोग बरकत को बरकत दे सकते हैं, लेकिन बरकत सिर्फ खुदा ही दे सकता है। याकूब अपने बाप एक आदमी को धोखा दे सकता है, लेकिन खुदा ने सब कुछ सुना, सब कुछ देखा और सब कुछ जानता है। ये याकूब की जो अभी तक खुदा से नहीं मिला हमाकत है। याकूब के लिए इसहाक की दुआ ये वाज़ेह है कि इसहाक की बरकत याकूब की बरकत नहीं बनेगी। कौमें तेरी खिदमत करें और कबीले तेरे सामने झुकें। तू अपने भाइयों का सरदार हो और तेरी माँ के बेटे तेरे आगे झुकें। जो तुझ पर लानत करे वो खुद लानती हो, और जो तुझे दुआ दे वो बरकत पाए। इसहाक ने कहा, अपने भाइयों का सरदार बन जा और तेरी माँ के बेटे तेरी बात माने। लेकिन याकूब के भाई या माँ के बेटे नहीं हैं, और उसका सिर्फ एक भाई ईसो है। ये एक दुआ है जो आखिरकार यूसुफ के पास आएगी, जो याकूब से वाबस्ता है। याकूब को उसके जिस्मानी बाप इसहाक ने बरकत दी, लेकिन वो अपने आसमानी बाप से ये बरकत हासिल ना कर सका, और उसी बरकत की वजह से वो बरकत के बजाय जिसकी वो उम्मीद करता है, वो अपने भाई की तरफ से इंतकाम लाया। ईसो कहता है कि उसके बाप इसहाक की मौत का वक्त करीब है, और इसहाक के मरने के बाद वो याकूब को मार डालेगा। उसकी ज़िंदगी अभी तक एक ऐसा बर्तन नहीं है जो खुदा की बरकत हासिल करने के लिए तैयार हो। लेकिन इंसानों के अल्फाज की बरकत हासिल करने के बाद हर चीज़ की खुशहाली की तवक्को करना भी इंसान का गुनाह है। ईसो अब कहता है कि उसका बाप जल्द ही मर जाएगा, और एक बार उसका बाप मर गया तो वो अपने भाई याकूब को मार डालेगा। लेकिन खुदा ने इसहाक को याकूब की खातिर मज़ीद 50 साल जिंदा रहने दिया। रिबका, जो एक ही दिन में दोनों बेटों को ना खो सकती थी, उसने याकूब को थोड़ी देर के लिए अपने भाई लाबन के घर भेजा। एक लम्हे के लिए याकूब ने सोचा कि ऐसा सिर्फ एक वक्त के लिए होगा, लेकिन बरकत की वजह से वो बरकत जिसे याकूब शिद्दत से चाहता था, उसे अपनी माँ को छोड़ना पड़ा, जो उससे इतना प्यार करती थी, और वो 20 साल तक अपने बाप को नहीं देख पाएगा। याकूब की माँ रिबका, जिसने इस अहमकाना बरकत की रहनुमाई की, बाइबल में मजीद जाहिर ना हुई। खुदा की बरकत कभी भी इस तरह नहीं है। खुदावंद ही की बरकत दौलत बख्शती है, और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। याकूब, जिसने अपनी बुलाहट पाई। याकूब को उसके बाप इसहाक ने बरकत दी। वो मफरूर हो गया और बिरसबा को छोड़कर हारान चला गया, जहां उसका मामू रहता है। जब सूरज गरूब हुआ, उसे एक घर जैसी जगह मिली और वो वहां सो रहा था। जब खुदा उसके ख्वाब में जाहिर हुआ, बस उसने सुना, और खुदावंद उसके ऊपर खड़ा कह रहा है कि मैं खुदावंद तेरे बाप अब्राहम का खुदा और इसहाक का खुदा हूँ। मैं ये ज़मीन जिस पर तू लेटा है तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा, और तेरी नस्ल ज़मीन की गर्द के ज़र्रों की मानिद होगी, और तू मशरिक और मगरिब और शमाल और जनूब में फैल जाएगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे और तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगे। और देख, मैं तेरे साथ हूँ, और हर जगह जहाँ कहीं तू जाए तेरी हिफाजत करूँगा, और तुझको इस मुल्क में फिर लाऊंगा, और जो मैंने तुझसे कहा है जब तक उसे पूरा ना कर लूँ तुझे नहीं छोड़ूंगा। यहाँ खुदा ने ईसो से कहा, अव्वल जैसे वो अब्राहम और इसहाक का खुदा था, वही खुदा याकूब का होगा। दूसरा, याकूब की नस्ल सारी दुनिया में फैल जाएगी। लेकिन हम अब्राहम के ज़रिए देख चुके हैं, हम रूहानी बच्चों की रूहानी तौसी का जिक्र कर रहे हैं, ना कि जिस्म से पैदा हुई औलाद की जिस्मानी तौसी।
तीसरा, जमीन के तमाम कबाइल याकूब और उसकी औलाद के जरिए बरकत पाएंगे और ये बरकत यीशु मसीह की अंजील के जरिए अब्दी जिंदगी की बरकत भी है। चौथा, खुदा याकूब की जहां भी जाता है हिफाजत करेगा और यकीनी तौर पर याकूब को उस मुल्क में लौटाएगा। इसलिए नहीं कि याकूब एक खास वजूद है या उसकी एक खास कदर है, लेकिन इसलिए कि अंजील की तारीख जो अब्राहम के साथ शुरू हुई, जो इसहाक के ज़रिए बहती और याकूब को जाती है, जिसमें आखिरकार मसीहा यहूदा की औलाद के तौर पर आएगा। खुदा यकीनन अपने जोश के साथ अपनी मर्जी को पूरा करेगा। खुदा ने कहा कि जब तक वो ये सब नहीं करेगा वो याकूब को नहीं छोड़ेगा। अब याकूब खुदा के कलाम पर कसम खाता है और याकूब ने मन्नत मानी और कहा कि अगर खुदा मेरे साथ रहे और जो सफ़र मैं कर रहा हूँ उसमें मेरी हिफाजत करे और मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देता रहे और मैं अपने बाप के घर सलामत लौट आऊँ, तो खुदावंद मेरा खुदा होगा और ये पत्थर जो मैंने सतून सा खड़ा किया है खुदा का घर होगा और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां हिस्सा ज़रूर ही तुझे दिया करूँगा। एक लफ्ज़ में याकूब कसम खाता है, अगर खुदा मुझे खाना खिलाए, मुझे कपड़े पहनाए और मेरी हिफाजत करे तो मैं खुदा को खुदा की हैसियत से तस्लीम करूँगा। ये एक इंसान की आम अहमकाना दुआ है। जिसने नेकोबद की पहचान के दरख्त का फल खाया, ये खुद पसंदी है। ये खुदा के लोग फर्जंद या खादम ना बनते हुए बादशाह बन रहा है और खुदा को खादम की हैसियत से इस्तेमाल कर रहा है। खुदा ने याकूब को बुलाया, लेकिन उसने अभी तक खुदा को अपनी ज़िंदगी का मरकज़ नहीं माना। याकूब का बच्चों की हैसियत गुनहगार की ज़िंदगी के साथ ज़िंदगी गुजारना। अब्राहम के बरक्स इसहाक और याकूब ने अपने वालिदैन के एतकाद के ज़रिए खुदा को पैदाइशी मसीही के तौर पर सुना और जाना, लिहाजा उसे बैतेल में मन्नत के साथ बुलाया गया, पर उसकी ज़िंदगी में हैरत अंगेज़ तब्दीली ना आई। लेकिन खुदा की मदद, हिफाजत और रहनुमाई हमेशा याकूब के साथ थी। ये इस तरह है जब इस्राएल मुसलसल बादल के सतून और आग के सतून के साथ रहते थे, यहाँ तक कि उनकी मुसलसल शिकायत और नाराज़गियों के दौरान भी 7 साल 7 चंद दिनों की तरह। एक मोड़ के बाद याकूब अपने मामू लाबन से मिलता है और उसे लाबन की छोटी बेटी राखल से प्यार हो जाता है। वो एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि जब याकूब ने लाबन से उसकी बेटी के लिए 7 साल का वादा किया तो वो बहुत ही कम वक्त की तरह लगा। यहाँ हम उलझ जाते हैं। दुनियावी बरकत हासिल करने के लिए उसने अपने भाई ईसो और अपने बाप इसहाक को धोखा दिया और यहाँ तक कि खुदा का नाम इस्तेमाल करने में भी धोखा दिया। लेकिन याकूब बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि इससे पहले के लोगों ने याकूब के लिए राह तैयार की जहां वो पहली बार गया। ये गैर मुनसिफाना मालूम होता है कि याकूब डाकुओं की गिरफ्त में आए बगैर अपनी मंजिल पर पहुंचे, उससे मुलाकात करे जिससे वो प्यार करता और अपने ख्वाबों का वक्त गुजारे। लेकिन हम बेहतर जानते हैं ये खुशी खुदा की अता करदा खुशी नहीं है, बल्कि बेहतर नज़्मो ज़ब्त पर चलने से पहले तौबा करने का मौका है। याकूब को खुदा के सामने अपनी हमाकतों का एतराफ़ करना और अपनी जगह लौटना पड़ा। लेकिन इंसान कभी भी अपने गुनाहों की असल नौयत नहीं जानता और कभी भी अपने गुनाहों को नहीं उगलता जब तक कि वो करीबन मारा नहीं जाता। तुम क्यों मुझसे ऐसा करते हो? राखल के साथ खुशी खुशी 7 साल गुजारे और उस आखिरी तारीख को जो लाबन ने कही पूरा करने के बाद याकूब ने बाज़ाब्ता तौर पर राखल से शादी की और राखल के साथ पहली रात गुजारी। लेकिन सुबह वो औरत जिसके साथ रात बसर की वो राखल की बहन लिया थी, राखल नहीं। याकूब को उसके मामू और अब उसके ससुर लाबन ने बेवकूफ़ बनाया था, जो याकूब से एक कदम आगे था।
लाबन ने धोखा देकर लिया से शादी कर दी जिसकी नजर कम थी और उसे शादी करने के लिए भेजना आसान नहीं था। आखिरकार याकूब लिया के साथ एक जोड़ा बनता है, पर एक जोड़े की तरह नहीं, और 7 दिन बाद राखल उसकी बीवी बनती है। अपनी ख्वाहिश के बावजूद याकूब की 2 बीवियां थीं। याकूब ने लाबन से पूछा, तुमने मेरे साथ ये क्या किया? लेकिन हम जानते हैं कि याकूब ने खुदा को कितना नज़रअंदाज किया। सिर्फ याकूब ही नहीं जानता, इसी किस्म की गैर मुतवक्का मायूसियाँ याकूब के बेटों की ज़िंदगी में भी होंगी। खुदा की तरफ से याकूब का घेरा। अब खुदा ने याकूब को घेरा। खुदा ने याकूब को बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि उसे याकूबे दुनिया में से याकूबे खुदा में कायम करने के लिए घेरा। ताहम ये वक्त याकूब के लिए बहुत मुश्किल होगा। पहले उसने गैर इरादी तौर पर 2 बीवियां हासिल की, लेकिन राखल जिससे वो प्यार करता था औलाद पैदा ना कर सकी, और सिर्फ लिया ने 4 बेटे रूबन, शमाउन, लावी और यहूदा को जन्म दिया। राखल जो ये तकलीफ देख रही थी, लेकिन लिया जिसने याकूब के बेटे पैदा किए पर उसकी मोहब्बत हासिल ना कर सकी, उसे भी तकलीफ का सामना करना पड़ा। उसके बेटों के नामों से ये जाहिर हुआ है कि याकूब लिया को पसंद नहीं करता था, और उन 2 के दरमियान याकूब पुरअमन या पुरसकून नहीं हो सकता। दूसरा, राखल जिसका एक भी बच्चा पैदा ना हो सका जबकि उसकी बहन के 4 बेटे थे, उसने सारा की तरह इस मसले का दुनियावी हल तलाश किया, जिसकी वजह से याकूब उसकी लौंडी बिल्हा के साथ सोया। याकूब पहले तो नाराज था, लेकिन वो ऐसा शौहर नहीं है जो अपनी बीवी को पीट सकता, लिहाजा वो राखल के कहने के मुताबिक ही करता है। आदम था, अब्राहम था, और याकूब भी उससे मुस्तस्ना नहीं था। राखल की लौंडी बिल्हा के जरिए याकूब के 2 बेटे दान और नफ्ताली थे, और उसकी 3 बीवियां थीं जो वाक़ियतन उसकी बीवियां नहीं थीं। उसकी बहन लिया हारना नहीं चाहती थी। उसकी लौंडी जिल्फा याकूब के साथ सोने से जिल्फा ने 2 बेटों जद और आशिर को जन्म दिया, और अब 4 बीवियां हैं जो वाक़ई में उसकी बीवियां नहीं हैं। लिया है जिससे याकूब ने मोहब्बत ना की, हालांकि उसके 4 बेटे पैदा हुए थे, और राखल है जिससे याकूब अपने पूरे दिल से प्यार करता है। इसके अलावा बिल्हा और जिल्फा 2 गुलाम लड़कियां हैं, और उनसे 2 बेटे पैदा हुए। वो कुशीदगी जो एक दूसरे के साथ रखती और 8 बेटों के माबैन पोशीदा मुताबिकत ने याकूब की ज़िंदगी को बहुत मुश्किल बना दिया था। अब तो उसे एहसास होना चाहिए था, अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई। हम खुदा का उसे घेरे में लेने पर बात कर रहे हैं, ताहम तमाम गुनहगार इंसान बग़ैर किसी इस्तिस्ना के हमेशा अंजाम को पहुंचेंगे। आखिरकार 2 बेटे अश्कार और ज़बलून और उसकी इकलौती बेटी दीना लिया से पैदा हुए, जिसका ख्याल था कि वो अब जन्नत से रह गई है। खुदा ने राखल के रहम को उस वक्त तक नहीं खोला जब तक कि ज़्यादा बेटों को जन्म देकर याकूब से ज़्यादा मोहब्बत हासिल करने की जंग ख़त्म न हुई। चुनाचे राखल का एक बेटा हुआ, वो यूसुफ था। आखिरकार 7 साल खुशी खुशी गुजारने के बाद और 13 साल किसी पुरअमन दिन के बगैर एक जंग में गुजारने के बाद, जो एक हकीकी जंग नहीं थी, याकूब ने लाबन से कहा, मैं अब वापस जा रहा हूँ। लेकिन लाबन ने याकूब को, जो अच्छी तरह और खलूस से काम करता है और पहले ही उसकी बेटियों के साथ बंधन में बंधा हुआ है, रोकने की कोशिश की। खुदा याकूब को, जिसने खुदा की बुलाहट पाई लेकिन फिर भी वो दुनियावी नेमतों के लिए सब कुछ करते हुए अपने आप को अपनी दुनिया के बीच में रखता है, बैतेल वापस लाएगा जहां से उसे बुलाया गया था। चाहे कुछ भी हो, खुदा उसको उसकी जगह पर घसीट लेगा। खुदा का जोश याकूब की जिंदगी के जरिए जाहिर हुआ, और खुदा के जोश के जरिए दुनिया से खुदा की तरफ लौटने वाले याकूब की जिंदगी की कहानी जारी रहेगी।